जॉब इंटरव्यूज़ की दुनिया में कॉन्फिडेंट रहना सबसे ज़रूरी है और मैं हूँ यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए। Let's ace that data analyst interview together. Hi everyone, welcome back to Prepare with Priya. So आज का टॉपिक is something special जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी some of the most asked questions in a data analyst interview. बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, let's go. What are the major steps involved in any data analytics project? This is the most basic question asked in any interview और ये question मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था एंड आई वॉज इन कॉलेज फिर भी मैंने इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रखा था क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है एंड आई एज दिस क्वेश्चन आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक रीज़न बना था कि आई गॉट सेलेक्टेड. So, how you can answer this question is first of all, we need to understand the business problem and we need to understand the organizational goals. कि वो ये data analysis इस पे क्यों perform कराना चाह रहे हैं, what do they want as a result. Okay, so first of all, we need to understand the problem, what are their goals, and then we can move on to collecting data from different sources. Then, once we have that collected data from different sources, now that is raw data. We then need to clean it. We need to remove null values, merge the duplicate values, and perform all sort of data wrangling steps in that. Once we have that ready data neat and clean, we then need to perform analysis on it with the help of maybe predictive modeling tools, with the help of statistics and all. We need to apply business rules on the data, and then we have our final data. We visualize that data with the help of dashboards, and then we interpret the data, how that data can be useful for the business, and how the data insights that we have found out, how are these insights serving to the organizational goals that we talked about in the step 1. So all these processes are involved in data analytics. And if you have done any projects, you can also add those examples in your answer जिससे कि आपको brownie point मिलेंगे. And this is something that I also did in my college days or when I was preparing for placements. Now comes again a very basic and a very important question जो कि लगभग हर इंटरव्यू में ही डेटा एनालिस्ट के पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा गया था. और इससे बेसिकली इंटरव्यूअर ये जज करता है कि आपने जो रिज्यूमे में लंबा चौड़ा लिखा हुआ है क्या आपको एक्चुअल में पता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपने बताया कॉन्फिडेंटली तो वो समझ जाएगा और हो सकता है कि इस पर आपके कुछ सॉफ्टवेयर पे क्रॉस क्वेश्चन भी करे उसी टाइम पे. यू शुड बी रेडी. Okay, so the question is, what are the data analytics softwares that you are aware about, and how would you rate yourself in those softwares on a scale of 1 to 10? In the answer of this question, you must mention SQL, preferably Python or R. For data visualization, either Tableau or Power BI would work. And then you can also give examples of your projects that you have made in these particular programs. और इससे आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे. आपके जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप उनसे कैसे अलग हो, ये आपको उस इंटरव्यूअर को ऐसा भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ तो मुझे ही चुन. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, हम एक थियोरेटिकल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे. दैट वुड बी describe the types of analysis, mainly descriptive, prescriptive, and predictive analysis. So let's see what can be the answer of this question. So before telling you all what should be the exact answer, yeah, the technical answer which the interviewer expects, ये important है that you understand the concept. So let me tell you all what you can understand about these types of analysis in very layman terms. सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इज़ व्हेन वी हैव डेटा ऑफ हिस्ट्री. हमारे पास पहले से डेटा है, हम उस डेटा को यूज़ करके हम ये दिखा रहे हैं हाँ इस महीने या इस क्वार्टर में हमारे बिजनेस ने ऐसा परफॉर्म करा, इसमें इतने सेल हुई, इसमें ये हुआ, इसमें इतना रहा हमारा कस्टमर रिटेंशन, ये वो. उसके बाद अगर हम देखें प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, तो उसमें ये अच्छा चलो प्रेस्क्रिप्टिव के पहले प्रेडिक्टिव कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास पहले का डेटा रहता है. अब हम उसमें बस ये नहीं दिखा रहे कि हमारे बिजनेस ने ऐसा परफॉर्म करा, उसमें हम थोड़े प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के टूल्स यूज़ करके ये भी दिखाते हैं कि हमारा डेटा आगे हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर सकता है बेस्ड ऑन आवर हिस्ट्री. ठीक है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को. इन द थर्ड वन विच इज़ प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इसमें हम ये दिखाते हैं कि ठीक है ये चलो हमारा हिस्ट्री जैसा तुम्हारे बिजनेस ने परफॉर्म किया ऐसा परफॉर्म कर सकता है. अच्छा परफॉर्म कराने के लिए तुम्हारे डेटा और बाकी चीज़ों पे बेस्ड ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो लोग ओनरशिप में हैं वो ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए. जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो वैसे ही हम स्टेप्स प्रेस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस.
Then comes a very important question: how to deal with missing data. Let's say you have collected a lot of data from different sources and they have a lot of missing values. So how can you deal with that data? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में आना चाहिए। रटा हुआ आंसर मत दो, जस्ट लेट द इंटरव्यूअर नो कि तुम्हें पता है उसका कंसेप्ट होता क्या है इसमें और कैसे होता है। सो इस चीज़ का आप आंसर ऐसे दे सकते हो कि लेट्स से वी हैव मिसिंग डेटा इन आवर डेटा सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द डेटा इज मिसिंग। इज देयर सम ह्यूमन error or something else? Is there some glitch in our system, in our whole pipeline? So what has actually happened? We need to understand why the data is not there. And okay, so we have understood this first, and then there are many approaches that we can go through. एक सबसे इजी तरीका होता है कि लोग सेल से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जो जो नल वैल्यूज है चलो उनके सेल्स को डिलीट कर दिया। बट देन इफ वी डिलीट सेल्स देर आर चांसेस ऑफ डेटा लॉस एंड हैविंग right exact data is very important for data analysis. So this is, I mean, not very recommended for removing null values or catering to the problem of null values in any data analysis project. Another thing can be we can use a lot of available methods, like we can predict कि अच्छा अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू क्या हो सकती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की हेल्प से भी वो जो खाली वैल्यूज़ हैं उनमें भर सकते हैं, ठीक है, आस पास का लेके डेटा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ नल वैल्यूज़। ऑलराइट, so next question the interviewer can ask is what are some of the major problems that data analysts face during their analysis? The answer of this can be like very straightforward and to the point, and it's very easy as well. तो अपने आप दिमाग में एक माइंड मैप बना लो। सबसे पहले डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। अब जो डेटा कलेक्ट किया उसी में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले स्टेप पे तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। सो द फर्स्ट वन कैन बी डेटा क्वालिटी इशूज़, ठीक है, आई मीन एरर इन कलेक्टेड डेटा, मिसिंग वैल्यूज़, ये वो, तो उसको मिला के तुम बोल सकते हो कि इशूज़ इन डेटा क्वालिटी। नेक्स्ट, अगर हमने बहुत सारा डेटा ले लिया, पूरा बहुत हमारा पूरा डेटा वेयर हाउस ही भर गया, ये वो, तो हमारे पास एक स्टोरेज प्रॉब्लम होती है डेटा एनालिस्ट के पास, ठीक है। फर्स्ट वन वाज दैट डेटा क्वालिटी इशू। सेकंड वन कैन बी डेटा पर्जिंग एंड स्टोरेज प्रॉब्लम फॉर दैट डेटा। देन हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया तो उस पर कैसे आपको एनालिसिस करना है, क्या करना है, वो कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स कैन बी एन इशू समटाइम्स। नाउ कीपिंग द डेटा सिक्योर एंड हैंडलिंग कंप्लायंस इशूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिस्ट एंड दिस इज अ मेजर इशू एज वेल। अब कौन ही चाहेगा कि उनका डेटा इनसिक्योर हो या कंप्लायंस इशू आ जाए, नहीं ना। तो इसको मैनेज करने के लिए बहुत दिमाग लगता है और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ये भी एक इशू है। और इसके अलावा इफ़ यू आर हैविंग लार्ज डेटा सेट यू कैन हैव परफॉर्मेंस इशू, है ना। पूरा भाई भर गया हमारा सब कुछ, जितना भी स्टोरेज वगैरह था, ये कहीं ना कहीं स्टोरेज वाले इशू से रिलेटेड है। पर फिर अगर आप मान लो आप बहुत बड़ी डेटा सेट से कुछ आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो सीक्वल वगैरह में, तो वहीं पे आपका परफॉर्मेंस इशू आने लगता है, बहुत ज़्यादा लैग करने लगता है हमारा सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। एंड देन द लास्ट वन इज़ communicating your findings, whatever you have found out from that data, to the non-technical stakeholders, especially the complex things. अगर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमने उसे टेक्निकलिटी यूज़ कर करके यहाँ तक लाए हैं, फिर उसे हम कैसे विजुअलाइज करें कि जो हमारा स्टेक होल्डर है, जो हमारे ओनर है, जिनको हमें ये डैशबोर्ड दिखाना है, वो तो नॉन टेक्निकल होंगे। तो हम अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है तो इस चीज़ में इशू आती है कि उस डेटा को कैसे विजुअलाइज करके उन्हें एक्सप्लेन करें दैट दिस इज़ व्हाट वी हैव फाउंड आउट। So this also can be a major issue. Another general question that an interviewer can ask is, what can be the ethical considerations of a data analyst? तो अब तुम खुद सोचिए, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि क्या क्या एथिकल कंसिडरेशंस हो सकते हैं। रॉबस्ट डेटा सिक्योरिटी रखना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना कि हम हाँ डेटा यूज़ करें, जो डेटा का ओनर है उसको ये पता होना चाहिए कि हम डेटा यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कितने दिन तक यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें डिलीट कर देना चाहिए। ये सब होता है डेटा कंसेंट। नाउ ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी देयर, देन डेटा ओनरशिप एंड राइट्स। सो दीज आर सम ऑफ द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। Time for the last question. What is data wrangling in data analytics? सो डेटा रैंगलिंग एक बहुत ही ऐसा फैशनेबल सा टर्म लग रहा है जो कि बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बट डेटा रैंगलिंग को डेटा क्लीनिंग भी कहा जा सकता है। तो अगर आप डेटा क्लीनिंग को लेके समझ के चलोगे तो बहुत ही ईजी होगा। सो यू कैन से दैट डेटा रैंगलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू अ फॉर्मेट विच इज ईजियर टू एक्सेस एंड टू एनालाइज। Okay, so we make the raw data into a format which is more consumable now in order to perform analytics and to do machine learning.
नाउ अगर आप अभी तक आप इतनी दूर आ चुके हो, सो आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये मुझसे भी पूछा गया था, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पे और बाकी मेरा जो इंटरनेट का पूरा रिसर्च है उसके बेस पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। ये थोड़ा फन और है ना माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन भी है। सो व्हाट माय इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इज़, so I was just sitting in my study room and I was giving my interview. He asked me that what are the objects or things around you which are generating data. तो वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, what are the objects or things around you which are generating data? If you have an answer to this question, make sure to comment. Okay, I'll check and I'll surely reply कि आपका to the point answer है या नहीं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने जो भी आंसर दिया है उसको और ज़्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है। Okay, so these were some of the most asked questions in a data analyst interview. Now these were from the general category. और भी कैटेगरीज होती है, जैसे SQL से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पाइथन से, एक्सेल से थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, मेजरली SQL से पूछे जाते हैं और पाइथन से पूछे जाते हैं। तो इनकी भी वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्दी और इसी सीरीज़ में मैं बनाऊंगी, ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू। Make sure to subscribe and comment your experience if you want me to add anything in this video. Also ये जो पूरा मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डू चेक इट आउट। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अपने रेफरेंस के लिए रख लेना, ठीक है, ताकि अगर आपको फटाफट रिवाइज़ करना हो तो आप उससे रिवाइज़ कर लो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।